Okay, good afternoon, everyone. Today I will teach you about definite articles in basic writing skills in information technology. So first of all, I will talk about the that is properly known as definite articles. So students, here as you can see that the is used before the title, यानी यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल जो दी है उसको टाइटल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो पर्सन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं. So some examples have been given here and you can see, for example, before Prime Minister. This is an important designation and before it the is used. Second, that is president. So the is applicable here. And next, chairman. So the is applicable here. So you can see the director, the vice chancellor, the secretary. So the education minister, the proctor, it means निरीक्षक in Hindi, you can say. So these are the important titles, and before them we can use the. So next rule. Now, no articles is used before abstract and material nouns. तो यहाँ पर स्टूडेंट हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, क्योंकि इन डिटेल इसके लिए स्पेशल जो वीडियो है आर्टिकल से रिलेटेड वो आप उसको देख सकते हैं. सो हियर यू कैन सी नो आर्टिकल is used before abstract and material nouns. Before abstract and material nouns. यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के पहले किसी तरह का आर्टिकल, कोई आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे और ना ही करते हैं. So some examples just I would like to place before you. Examples just you can see. Suppose wisdom. Yes, poverty. Wisdom is noun, it means jnana. This is abstract noun. And gold, silver, like that. Gold, silver, it means iron, milk, etc. Sugar, oil also.
sugar, sugar. Also virtue, it means sadgun. That is abstract noun. Water and so on. So before these words, no article will be applicable or used. And next rule, no article is used before proper nouns. Before proper nouns. So as you can see, नो आर्टिकल्स, किसी तरह का आर्टिकल का प्रयोग आपको नहीं करना है प्रॉपर नाउन्स के पहले. एंड सम एग्जांपल्स आर जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, जैसे दिल्ली या फिर कोलकाता, इंडिया, जो भी रमा, जो भी प्रॉपर नाउन है, रोम, चाइना. So before proper nouns, no article is used. So always try to recall, always try to remember. And next, rule is no article is used before names of relation. किसी तरह का रिलेशन हो, संबंध हो, तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, जैसे फादर, मदर, अंकल, आंटी, brother, sister. So always try to remember that before names of relation, no article is used.
And next rule is next rule is no article is used before names of games. यहाँ ध्यान देना है, जो भी गेम्स हैं उसके नाम के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, पोलो एंड वॉलीबॉल एक्सेट्रा। तो ये जो भी नाम है खेल का, उसके पहले आपको नो आर्टिकल का प्रयोग होगा, किसी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यह ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट रूल इज no article is used before names of subject। तो यहाँ आप देख सकते हैं, yes, names of before names of subject। तो जो भी सब्जेक्ट है उसके पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा, या फिजिक्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ईटीसी। तो जहां भी सब्जेक्ट का नाम हो वहां पर आपको आर्टिकल लगाने से बचना है।
And next rule is no article is used before names of language. तो जो भी नाम है, अगर भाषा का नाम है तो वहां पर आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, हिंदी या जो भी संस्कृत, एक्सेट्रा. सॉरी इन लैंग्वेज सॉरी ये इंग्लिश तो ठीक है, हिंदी, उर्दू, जर्मन, संस्कृत. Here, so English is the name of language, Hindi language, Urdu language, German language, संस्कृत language. ये सब के पहले आपको किसी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा. So next rule is students, no article is used before names of the days. यहाँ पर ध्यान देना है, दिन के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं. नेम्स ऑफ द डेज, ऑफ द वीक कर दीजिए यहाँ पर, ऑफ द वीक. एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख सकते हो, कोई भी, जैसे ट्यूजडे या फिर वेडनेसडे, कोई भी दिन, संडे, सैटरडे. तो नहीं होगा, यहाँ पर किसी तरह आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे. एंड नेक्स्ट, here no article is used. Next rule है, before the names of the month of the year. Month of the year. कितना बजे आपने? So students, here as you can see, no article is used before names of the month of the year. For example, हाँ, अप डाउन हो रहा है.
यहाँ पर स्टूडेंट बिफोर नेम्स ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर यहाँ पर नहीं होगा, जैसे कोई भी नाम ले लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई या फिर जून। तो जो भी आप देख रहे हैं ये सब सारे महीने के नाम है। तो इसके पहले हम लोग किसी तरह का आर्टिकल का प्रयोग ना करें। सो यहाँ पर मैं आर्टिकल आपको मैं समाप्त करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पैराग्राफ। तो construction of a paragraph, it means how will you make your paragraph effective, impressive and powerful about all things I will tell in detail. So construction of paragraph. तो पैराग्राफ को हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे कंपोज करेंगे, कैसे उसको बेहतर बनाएंगे, इन सारी बातों पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो एज वी नो दैट ए पैराग्राफ is a collection, of sentences. स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं कि एक जो पैराग्राफ होता है वो एक तरह का कलेक्शन होता है, श्रृंखला होता है और उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं और वो ऑर्गेनाइज होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनाइज होते हैं। वो ऑर्गेनाइज होते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है? सो दैट in a proper order. वो ऑर्गेनाइज होते हैं प्रॉपर ऑर्डर में ताकि एंड प्रोवाइड्स a complete sense and sensibility. Sense and sensibility.
तो स्टूडेंट सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। सेकेंड, ये ऑर्गेनाइज होते हैं एक प्रॉपर ऑर्डर में, और इसके बाद हम लोग को एक कंप्लीट एक डेवलप सेंस मिलता है उस पैराग्राफ से। इसके बाद आगे बेसिक पैराग्राफ स्ट्रक्चर, a basic paragraph structure consists of the following five sentences. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया गया है कि जो बेसिक पैराग्राफ स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पर नीचे जो 5 सेंटेंस हैं उनमें उनका बहुत ज्यादा योगदान है। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक सेंटेंस के बारे में जानेंगे। टॉपिक सेंटेंस, सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस, देन आफ्टर थ्री, पहला हो गया टॉपिक सेंटेंस, उसमें 3 सपोर्टिंग सेंटेंस होते हैं। थ्री सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं, और एक कंक्लूडिंग, लास्ट में एक कंक्लूडिंग तो आप देख सकते हैं, मैंने बताया था कि इसमें 5 जो सेंटेंसेस हैं उनका एक अहम योगदान है एक अच्छे पैराग्राफ को बनाने में। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉपिक सेंटेंस, और सेकंड में यहाँ पर उसके साथ 3 सपोर्टिंग सेंटेंसेस रहेंगे, और इसके बाद एक कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक सेंटेंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टॉपिक सेंटेंस के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो टॉपिक सेंटेंस इट मीन्स गिव्स द मेन आइडिया ऑफ ए पैराग्राफ of a paragraph. So students, टॉपिक सेंटेंस क्या देता है? जो मुख्य आइडिया है उसके बारे में यह बताता है। पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है, व्हाट इज द मेन आइडिया,
topic sentence expresses completely. Also known as a hook sentence. यह हुक सेंटेंस के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे हुक मीन्स होता है फंसाना, तो यहाँ पर सेंटेंस को यह पूरी तरह से रिलेट करके चलता है। ऑनेस्ट ड्रॉज द reader into the paragraph. So students, here यह जो रीडर का ध्यान है, जो रीडर का ध्यान है वो पैराग्राफ की तरफ खींचता है, तो बहुत जरूरी है। और इट मेक्स द स्टेटमेंट ब्राइट एंड बोल्ड। ऐसे में यह जो स्टेटमेंट है, जो सेंटेंस है, उसको काफी यह प्रभावशाली और मजबूती बनाने का काम करता है। मतलब यू कैन यूजिंग दिस यू कैन मेक योर स्टेटमेंट bold, smart and powerful. Actually, a book is a sentence. यहाँ पर बुक जो है एक तरह का सेंटेंस ही होता है, या अभी बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, और ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, that draw people into the paragraph, into the paragraph. So students, as you can see here, हुक एक तरह का सेंटेंस होता है, या फिर कर सकते हैं सेंटेंसों का बहुत सारे वाक्यों का समूह होता है जो लोगों को ध्यान खींचने का काम करता है पैराग्राफ की ओर। So in next video I will teach you about writing a topic sentence. How will you compose or write a topic sentence? So right now I am going to leave this live class. That's all. Thank you very much. So next will be 1 minute.
तो स्टूडेंट इसके बारे में आपको you just go through the book and just explore each and everything in the chapter, and the name is construction of a paragraph. So thanks for attending. That's all. Once again, thank you very much. सुनो जी,